Hello everyone, welcome to the Environment and Ecology Current Affairs classes. Today we will discuss about the topics of Nilgiri marten, which is endemic to the Western Ghats, and then we will see about Haile Gubbi volcanic eruption, which was recently in news, है ना, ये इथोपिया में volcanic eruption हुआ है, and then we will see about the magnetoreception. Magnetoreception क्या है? How birds navigate, इसके बारे में भी हम देखेंगे. This was in news. And then Himalayan musk deer, है ना, recently it was spotted in West Bengal after many decades actually. Then we'll see about the Great Pacific Garbage and Global Methane Status report released by UNEP. ठीक है, moving forward to the topics. In the first topic about Nilgiri marten. Now what is this Nilgiri marten? This is actually the news studies show declining sightings of Nilgiri marten in the Western Ghats due to habitat fragmentation. Western Ghats are always in news where because of degradation, है ना, एक hotspot भी है वो, and there is rapid decline in the forest cover as well as the biodiversity in Western Ghats. इसके related यही नीलगिरी मार्टिन के ऊपर भी नोट्स न्यूज़ आया है. इसी तरह there is also one endemic animal that is Nilgiri tahar, है ना, और then Nilgiri marten. Now Nilgiri marten, it is a vulnerable और this is and especially this is a carnivorous animal. ठीक है, वो कैसे दिखता है? This is how it looks. It has a yellow throat. ठीक है. About Nilgiri marten, it is a geographic distribution देखेंगे तो it is endemic to the Western Ghats south of Sakleshpur onwards, found in the states of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. ठीक है, ये तीन states में दिखता है. Then इनका habitats 16 grasslands, ठीक है, and they eat birds, reptiles, small mammals like hares, squirrels. ठीक है, इसलिए ये carnivores है and in behavior it is diurnal. UPSC जब कोई एक एनिमल या कोई स्पीसीज न्यूज़ में होता है तो उसके बारे में कुछ डिटेल सवाल पूछ रहा है, तो उसीलिए वी हैव टू रिमेंबर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, व्हाट इट ईट्स एंड हाउ इट बिहेव्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे. नेक्स्ट इज द IUCN स्टेटस. IUCN स्टेटस ऑफ आवर नीलगिरी मार्टिन इज वल्नरेबल. नाउ व्हाट इज इज वल्नरेबल? IUCN स्टेटस के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं ये, है ना, देखिए, पहला नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न. ठीक है, दिस एनिमल्स डज नॉट फेस एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स, है ना, वो उनकी पॉपुलेशन और उनकी नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं दे आर इन गुड नंबर्स. उसके बाद दे आर थ्रेटेंड एनिमल्स विच आर थ्रेटेंड, है ना, उसमें तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड. देन उसके बाद एक और कैटेगरी है विच इज एक्सटिंक्ट. मतलब एक्सटिंक्ट एक टोटल एक्सटिंक्ट है वेयर देर इज कंफर्म न्यूज कि उनका एक भी एनिमल कहीं पे मिलेगा नहीं. एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट दे आर इन जूज एंड पार्क्स. ये चीज़ें इसके बारे में. नाउ वल्नरेबल किसको कहते हैं? वल्नरेबल और ये वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कैटेगरी है ना, उसमें देखिए उसके डिपेंड करता है बेस्ड ऑन दी population. Based on the population, to be listed as threatened species must fit one of the following qualifications. If a projected population decline of greater than 30%, then by next 10 years, so उसको हम क्या बोलेंगे? vulnerable बोलेंगे. If the projected population decline is greater than 50%, तो वो किस में जाएगा? endangered में जाएगा. If the projected population decline is more than 80% in next 10 years, then that will be declared as critically endangered and it needs more protection for its survival. ठीक है, उसी तरह से उनका ग्लोबल रेंज भी है. अगर से 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा उनका रेंज है तो वल्नरेबल में आएंगे. 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से अगर से कम है तो देन देयर विल बी इन दी endangered category. If their range is less than 100 square kilometers तो वो
क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, बिकॉज उनको थ्रेट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से नंबर ऑफ पॉपुलेशन और ग्लोबल पॉपुलेशन साइज अगर से देखेंगे, इफ द इंडिविजुअल्स आर लेस देन 1000, so they will go into vulnerable category. If the individuals are less than 250, ठीक है, they may be classified as endangered. If the individual population of any animal is less than 50, then it will be categorized as critically endangered, ठीक है। तो इस categorization से we also have specific protection schemes, ठीक है, उनको कितना प्रोटेक्शन देना है, कौन से स्कीम्स में, तो दिस विल बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ IUCN स्टेटस, ठीक है। सो दिस नीलगिरी मार्टिन रिसेंटली उसका साइटिंग कम हो रहा है, वल्नरेबल स्पीसीज है। इसी तरह नीलगिरी तहर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंड दिस बोथ एनिमल्स आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नाउ वेस्टर्न घाट्स देमसेल्फ आर वेरी हाईली बायोडाइवर्स, ठीक है। उसमें एक यूनिक फॉरेस्ट टाइप है शोला, है ना, जैसे कि हमने नीलगिरी मार्टिन एंड नीलगिरी तहर, ये दोनों शोला फॉरेस्ट में रहते हैं, दे आर एंडेमिक टू देम। नाउ व्हाट आर दिस शोला फॉरेस्ट, दे आर वेरी यूनिक, है ना। दिस आर स्मॉल आइसोलेटेड ट्रॉपिकल माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये माउंटेन एट सम अल्टीट्यूड अराउंड 2000 और 1000 to 2000 मीटर्स, उस अल्टीट्यूड में ये शोला फॉरेस्ट मिलते हैं, एंड दे आर नॉट इन ए कंटिन्यूस पैच, दे आर एक्चुअली isolated. कैसे? You can see in this diagram where there are mountains, है ना, surrounding a valley, और ये जो शोला फॉरेस्ट मिलता है it is in the valleys, और this is evergreen forest. ये क्या है? evergreen forest, ठीक है यहाँ पे। and specifically their uniqueness is they have stunted height. evergreen forest क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हाइट होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आता है कि दे आर वेरी टॉल, ठीक है। लेकिन ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो शोला ग्रासलैंड के पास मिलता है, इट इज ए स्टंटेड एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। इसमें नीलगिरी एंड हमारा नीलगिरी मार्टिन, दिस आर टू इंपॉर्टेंट एनिमल्स हियर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेलीगुबी। आप सभी लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली ए वोल्केनो एरप्टेड आफ्टर 10,000 ईयर्स, ठीक है। वो 10,000 साल जो कि नियोलिथिक टाइम पीरियड है, वहाँ से जहाँ से नियोलिथिक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, उससे पहले वो उसका एरप्शन था, उस 10,000 साल से वो डॉर्मेंट रहा। अगर से हम वोल्केनोज का कैटेगरीज देखेंगे बेस्ड ऑन द एरप्शन टाइम, ठीक है, एक होते हैं एक्टिव, जो उनमें एक्टिविटी है, जिनका एरप्शन अभी भी हो रहा है। देन देर आर डॉर्मेंट, जो रिसेंट पास्ट में ओवर सेंचुरीज और थाउजेंड्स ऑफ ईयर से उसमें एक्टिविटी नहीं है, बट देर आर चांसेस कि दैट volcano can erupt any time, उसको हम बोलते हैं dormant volcano. And there is another category of extinct volcano, है ना, they had that activity long before and there are no chances of activity in near future, उसको हम बोलते हैं extinct volcanoes. तो ये हेलीगुबी जो रिसेंटली इथोपिया में जो eruption हुआ है, it is in the Afar region of Ethiopia, which is around the Red Sea and Gulf of Aden, ठीक है। यहाँ पे इथियोपिया इज इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेजर 4 मेन जो कंट्रीज हैं, देयर आर 4 कंट्रीज, SEED, सीड, दैट इज सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबौटी। एंड जिबौटी ये हमेशा न्यूज में रहता है, बिकॉज चाइना हैज ए नेवल बेस ओवर दिस, ठीक है। आप अगर से मैप में देखेंगे, हियर दिस इज द अफार रीजन, ठीक है, इट्स लाइक ए ट्रायंगल हियर, यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, अफार ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो रिसेंटली जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, हियर इट इज, ठीक है, इस रीजन में हुआ है, एंड दिस इज जिबौटी। उसके ऊपर में क्या आ जाएगा? एरिट्रिया आ जाएगा। उसके ऊपर में क्या आ जाएगा? दिस इज एरिट्रिया, जिबौटी, ठीक है। नाउ दिस इज कंट्रीज ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंड यहाँ पे देखेंगे तो दे बॉर्डर रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन, बट इथियोपिया इज लैंडलॉक्ड। इथियोपिया इज ए लैंडलॉक्ड। यूपीएससी इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, न्यूज जो रहता है उसके स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है। नाउ द क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे? अब जैसे फॉर एग्जांपल इथियोपिया ओपन्स टू रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन, ठीक है। हियर इथियोपिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। देयर आफ्टर यहाँ पे देखेंगे, देन इन दिस इथियोपिया देर आर मेनी लेक्स, एंड यूपीएससी
नाउ करंट ट्रेंड है ना, यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट द लेक्स। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, विल सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेक ताना, इट इज इन इथोपिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लेक आवाश है, लेक एबे है, लेक अबाया, ठीक है। दिस आर इंपॉर्टेंट लेक्स एंड लेक रुडोल्फ। दिस लेक्स आर विद इन द रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, है ना, जहाँ पे देर आर डाइवर्जेंट प्लेट्स, वेयर देर आर डाइवर्जेंट प्लेट्स। उसके वजह से ही ये जो हाईली गुब्बी का इरप्शन हुआ है वो हुआ है, बिकॉज प्लेट्स आर डाइवर्जिंग, उसके वजह से इरप्शन हो रहा है, मैग्मा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये एंड apart from this there is one important lake in Djibouti in this region, name Lake Asal, and this is for your information it is a saline lake, ठीक है। तो कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आज इस न्यूज़ के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लेक्स रहेंगे, दैट इज लेक ताना, लेक असल विच इज सलाइन इन नेचर, लेक आवाश एंड लेक अबाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इस न्यूज़ से इसको। एंड देयर आर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो वोल्केनो है इट हैज़ क्रिएटेड ए मेनी environmental hazard, it has caused a natural hazard like it has caused a dangerous or threat to the aviation sector। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट रहा है, वेयर इन मेनी फ्लाइट्स वेर डाइवर्टेड, है ना। तो वोल्केनिक एरप्शंस के वजह से देर आर सोशो इकोनॉमिक डैमेजेस और कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आफ्टर दिस वी विल सी अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बर्ड नेविगेशन विच इज नोन एज मैग्नेटो रिसेप्शन। बर्ड नेविगेशन इज कॉल्ड एज मैग्नेटो रिसेप्शन, ठीक है। दिस इज कमिंग इन न्यूज़, बार बार ये न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो यूपीएससी आस्क ये मैग्नेटो रिसेप्शन कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट्स वेरी सिंपल। मैग्नेटो आपने देखा होगा कि देर आर मेनी बर्ड्स विच फ्लाई राइट फ्रॉम साइबेरिया, दे कम टू इंडिया एंड दे रीच टू अफ्रीका। ये जो इनका फ्लाईवे पाथवे जो है, फ्लाइंग पाथवे जो है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कैसे होते हैं, बिकॉज दे हैव दिस नेचुरल कंपास इन देयर माइंड्स। वो कैसे होता है देखो, मैग्नेटो, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटो रिसेप्शन। मैग्नेटो रिसेप्शन इज द एबिलिटी ऑफ सम एनिमल्स टू सेंस एंड यूज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर नेविगेशन यूजिंग लाइक ए कंपास एंड ए मैप, ठीक है। ये वाला है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, दिस सेंस इज फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, ठीक है। अगर से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दिस मैग्नेटो रिसेप्शन और नेचुरल नेविगेशन इज फाउंड ओनली इन बर्ड्स, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग इन इटसेल्फ बिकॉज दिस इज फाउंड इन मेनी एनिमल्स लाइक फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। जैसे कि बैट्स, ये भी मैग्नेटो रिसेप्शन से फ्लाई करते हैं। अब ये होता क्या है, हाउ दिस वर्क्स, सिंपल हमें देखना है, इसके साइंस में उतना नहीं जाते हैं, ठीक है। हाउ दिस वर्क्स, लाइक अर्थ हैज ए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ हैज ए मैग्नेटोस्फीयर, है ना, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड starts from north pole and goes to the south pole, like you can see here, these are the magnetic lines, ठीक है। so this is European robin bird, if it is flying, है ना, it will sense it is following the magnetic line. If it changes the direction, it will become parallel to magnetic lines. Then some biological molecules found in the stem of brain and spine, हाँ, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, they get activated, है ना, then that helps in correcting the flying path of birds, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटो रिसेप्शन, ठीक है। ये पिजन में भी होता है and they fly using this magnetic field of earth, ठीक है। Moving to the next topic, that is auroras. पिछले वीडियोस में भी हमने इसको कवर किया है अबाउट ऑरोरास। इसमें हमने इसको इसलिए रखा है, अगेन लास्ट ईयर, ए ईयर बैक, है ना, 1.5 year बैक, ऑरोराज वेर विजिबल इन लद्दाख एंड रिसेंटली ऑरोराज वेर विजिबल इन लद्दाख, ठीक है। तो जनरली दिस इज इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईयर ऑन ईयर ये हमें दिख रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरोराज आर द लाइट्स और ग्लोविंग लाइट्स इन स्काई
caused by the solar particles, charged solar particles, है ना, with when they interact with Earth's magnetic field and excite the atmospheric gases like nitrogen and oxygen in ionosphere. Where? In ionosphere. ठीक है, ये इससे ग्रीन ब्लू वायलेट लाइट्स आते हैं बिकॉज ऑफ दे एज द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सन इंटरेक्ट विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब नाउ इससे ये कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आर generally they are very common, you can say, in polar regions like countries. They are best visible in Norway, Finland, Iceland, Canada and Alaska. ये रीजन में ये कॉमनली दिखते हैं. ठीक है, नाइट के टाइम पे. वैसे तो ये होते दिन में भी और रात में भी है, लेकिन दिखते रात में है हमारे को. नाउ दे आर समटाइम्स विजिबल इन मिड लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे अराउंड 60s, around 50 degree north and south latitude, they are sometimes visible, है ना. But they are also rarely visible in tropical latitudes like in the region of Ladakh. यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑरोरास जो है सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन्स में ही दिख सकते हैं. दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज दे आर ऑल्सो विजिबल rarely, but yes they are visible in the regions like Ladakh. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Then moving to a very interesting animal again, that is musk deer. ठीक है, musk deer. Now this was photographed in West Bengal after 70 years, है ना. ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में मिलती है, पाई जाती है ना, मस्क डियर. और ये बंगाल में, नॉट इन दी सदर्न बंगाल बट विद इन नॉर्दर्न बंगाल, वहाँ पे 70 ईयर्स के बाद में दिखा है ना. और वो कहाँ पे दिखा है? न्योरा नेशनल पार्क में, वैली नेशनल पार्क में मिला है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका रेंज वॉज वेरी लिमिटेड एंड दिस इज वेरी शाय एनिमल, है ना. शाय एनिमल ये ऐसे इन जनरल हर जगह पे दिखता नहीं है. इट हैज़ वेरी लिमिटेड रेंज, यू कैन सी हियर, है ना. ये हिमालयंस लोअर मिडिल एंड लोअर हिमालयज में ही दिखती है. तो ये अभी अभी 70 साल बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क में दिखा है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका रेंज बताया जा. नाउ इट इज लाइक दे कैन बी कंजर्व्ड और प्रोटेक्टेड, है ना. वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दोज मस्क डियर्स इन दिस रीजन, है ना. इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम. हियर द हैबिटेट, है ना. दिस इनका हैबिटेट क्या है? अल्पाइन फॉरेस्ट अबाउट 2500 मीटर्स, है ना. एंड एजेस ऑफ अल्पाइन फॉरेस्ट एंड मिडोज विथ प्रेफरेंस टू स्टीप स्लोप्स. ये स्टीप स्लोप्स में रहते हैं. ठीक है. देन दे डोंट हैव एंटलर्स. ठीक है, जो 12 सिंगा जैसे सिंग, है ना, ये मस्क डियर में नहीं होते हैं. दे आर वेरी शॉर्ट इन साइज लाइक डॉग्स, है ना. द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दे हैव दिस डिस्टिंक्टिव लॉन्ग फैंग लाइक अपर कैनाइन्स. ठीक है, टस्क. दे हैव कैनाइन्स लाइक टस्क एंड दे आर लॉन्गर इन मेल्स. दे आर वेरी लॉन्गर इन मेल्स. ठीक है, मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बट दे आर लॉन्गर इन मेल्स एंड दे आर डिस्टिंक्टिवली विजिबल इन मेल्स. ठीक है, होते हैं. इस एंड द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस मस्क डियर इज मस्क, मुस्क भी बोलते हैं इसको उर्दू में, विच इज ए सेंट, है ना. ये परफ्यूम में यूज किया जाता है. दिस इज वाई दिस आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज दे आर हंटेड फॉर द मस्क. दे हैव ए मस्क ग्लैंड इन देयर बेली रीजन, है ना. यहाँ पे मस्क मेल्स, दे हैव दिस मस्क ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस द मस्क सेंट, है ना, स्मेल. उसके लिए उसको हंट किया जाता है. दिस इज वाई दिस आर वेरी वल्नरेबल टू द किलिंग्स एंड इलीगल पोचिंग. ठीक है. एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज मस्क ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स. दिस इज फाउंड ओनली इन मेल मस्क डियर. ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट यस दिस इज करेक्ट.
मस्क ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल मस्क डियर। इतना आपको इसमें ध्यान रखिए, ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नाउ ये मिला कहाँ है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिसेंटली न्योरा वैली नेशनल पार्क है ना, इट इज इन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ वेस्ट बंगाल, बॉर्डरिंग भूटान एंड सिक्किम, बॉर्डरिंग भूटान एंड सिक्किम, ठीक है, वहां पे ये मिला है। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क का लोकेशन भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट मीथेन इज ए पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। उसमें वी आर नाउ मॉनिटरिंग मीथेन emissions, ठीक है। रिसेंटली यूनेप हैज रिलीज द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025, ठीक है। क्या है, कौन रिलीज करता है मीथेन स्टेटस रिपोर्ट? इट इज रिलीज्ड बाय यूनेप, ठीक है। इसको आपको प्रीलिम्स के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025, ठीक है। अंडर ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसके अंदर ग्लोबल हम नेटवर्क देख रहे हैं। और इंडिया में पहले तो इन जनरल उसका सोर्सेज देख हैं मीथेन का। मीथेन के सोर्स, मेजर सोर्सेस आर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड यूज, देन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, दिस इज वेरी मेजर सोर्स ऑफ मीथेन। देन बायोमास एंड बायोफ्यूल burning, wetlands are also source of methane emission. Yes, wetlands are also source of methane emission. हम wetlands को हमेशा positive देंगे, वैसे yes they have very positive impact, but yes they are also the source of methane emission. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी पूछता है ओजोन कहाँ से रिलीज होता है, स्टेबल बर्निंग से ओजोन रिलीज होता है नहीं होता है ना, देयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि wetlands आर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। अब जो कि मीथेन जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, वेटलैंड्स पॉजिटिवली हम हमेशा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यस, वेटलैंड्स आर आल्सो सोर्स, इनफैक्ट मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशंस, ठीक है। देन नेचुरल एमिशंस भी होता है, एंड देन सॉइल से, सॉइल में सिंक होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आवर मीथेन एमिशंस। एंड इंडिया में द नदर्न रीजन जो कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, livestock are major source of methane emission in India. The northern belt है ना, northern plains are major source of methane emission है ना, और उसको हमें कम करने के लिए improve वर्क करना है, ठीक है। तो these are the important topics in this week's environment and ecology questions. Thank you.